Have you ever wondered why two people with the same degree, similar experience, and even working in the same company have a huge salary difference? One earns 8 lakhs a year, another earns 20 lakhs, while even the some another person in the same organization may be earning 40 lakhs. The difference is rarely about intelligence or luck. So, in today's video, I'll share the 5 income skills that the employers are looking for and value the most. If you start developing even two of them, अगर आप इन पांचों में से दो भी कर लेते हो, I can bet on you that your earning potential will increase a lot in the coming years. So in today's video, I'll share the same 5 skills. And before starting with the video, I'll brief about myself. I am CA Soumya Sharma. I started my career with KPMG. Currently, I am associated with PwC and I have cracked all the Big Four interviews twice. Yeah. So this is what I actually meant to show you all, and I can vouch for it. Me being in a Big Four, I can vouch for these 5 skills. Trust me, guys. I have seen people on the same platform, on the same position, but getting different pays. And unka reason I will disclose in today's video. The first thing, it's very important in communication. Trust me, जिनको ज़्यादा salary मिलती है, it's all about their good communication and how they put their across their ideas. They are often not the very best people in terms of their technicalities, but yes, they are best in terms of communicators. They know how to deliver things, they know how to put across their ideas. अगर कोई दिक्कत आती है, they are the first one to take a lead and showcase everything कि this is how the issues are and इसको solve कैसे करना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत अच्छे से अपने आइडियाज पुट अक्रॉस करते हैं. सो कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी टाइम एंड अगेन इन द कमिंग ईयर्स, बिकॉज आपने अगर इस पे स्किल अपने मास्टर कर लिया ना, इवन इन योर इंटरव्यू यू विल बी वैल्यूड लाइक एनीथिंग. ट्रस्ट मी, even your HR will value like anything, people in the company will value you, because then they will set up base beyond which then they will talk to you. And that's only because one of our very but ये बहुत underrated skill है, because I know everybody says everybody can have a different opinion. Majority people says communication is just a way of expressing ideas. Yes, I do agree it is a way of expressing ideas, but what if your ideas are very good, everything is excellent, but आप उसको communicate ही नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो what is the point of good ideas? So if you have this skill, your genuinely salary will increase a lot, because फिर आपको negotiation skills भी आएंगे, फिर आपको बात करने का तरीका भी आएगा, and you will do wonders. And trust me, once you develop this skill, people are going to be behind you. Whenever you speak, people will learn whatever you're saying. ठीक है. एंड आप इसको प्रैक्टिस करो, मतलब ऑब्वियसली डे वन पे नहीं आएगा. जस्ट प्रैक्टिस इज ऑन कैमरा. रीड बुक्स, एंड इस बुक्स में आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ बहुत ही इंस्पिरेशनल या कुछ ऐसा हाई लेवल पढ़ लो कि यू आर नॉट एबल टू गेट इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्किल. यू स्टार्ट, आपको जिसमें आपको फिक्शन में अच्छा लगता है आप वो पढ़ो, आपको जिसमें मजा आ रहा है यू जस्ट रीड आउट. डोंट थिंक कि आई वांट टू डेवलप समथिंग दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग. जस्ट रीड फॉर द हेक ऑफ रीडिंग. ठीक है. आप हैंड से राइटिंग करो या बिजनेस राइटिंग करो, कुछ भी करो. एंड ऑल्सो लर्न प्रेजेंटेशन स्किल्स फ्रॉम दी PPTs we create. There are a lot of hidden skills when you create a PPT. And not only PPT, जब आप present भी करते हो लोगों के सामने, there are a lot of tips when you speak, how to stand, when to take a pause, when to look at the audience, when you have to look on your own PPT. PPT में कितना कंटेंट होना चाहिए, it should not be overloaded, because प्रेजेंटेशन इज मोर अबाउट आप ज्यादा बोलो, प्रेजेंटेशन पे कम लिखा होना चाहिए, बिकॉज प्रेजेंटेशन पे उतना ही लिखा होना चाहिए जितना जो व्यूअर आपका देख रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके. इट इज यू जिसमें हमारा फोकस होना चाहिए. करेक्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. नेक्स्ट विच आई पर्सनली फील इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज इज AI एंड ऑटोमेशन. अगर आपने इस पे मास्टर कर लिया, द फ्यूचर इज योर्स. Don't take AI against you. I have never taken that. All, but if you go with AI, trust me, you can save hours and hours in a year. आप 300-400-500 घंटों से ज्यादा एक साल में अपना सेव कर सकते हो if you start using the right way of using AIs. ठीक है.
And AI is non-negotiable now, especially if you're a CA professional. There are so I'll bring in the video जहाँ पे I can tell you the usage of AI and how to use the AI. There are 7 to 8 tools of AI which is amazing when you use it. Your work your workload actually reduces a lot when you start using AI. सो आप इसको लर्न करो, ठीक है। एक दिन में नहीं आएगा ऑब्वियसली, यू कीप वेन एवर यू फ्री आप एआई को कमांड्स दो, टॉक टू एआई। एआई ऑल्सो हैज अ वॉइस रिकॉग्निशन मोड, आप उनसे बात करो, ठीक है। एंड लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग। आप और उनके प्रॉम्प्ट्स देना भी आप सीखो कि हाउ यू गिव द प्रॉम्प्ट। आप प्रॉम्प्ट दो चीजें करो। आप एक बार उन्हें प्रॉम्प्ट दो रैंडम, ठीक है। फिर धीरे धीरे ओवर द टाइम यू विल नोटिस योर आंसर्स दी चैट जीपीटी हैज स्टार्टेड गिविंग यू हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्योंकि आपके प्रॉम्प्ट्स भी अच्छे हो गए होंगे। इन द कमिंग वीडियो आई गेट अ वीडियो वेयर आई कैन एक्चुअली टीच यू कि प्रॉम्प्ट्स देने कैसे चाहिए एआई को, दैट विल गिव यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, ठीक है। एंड अगर आप उन्हें बार बार वही काम करने के लिए बोलोगे ना, इट विल डू वंडर्स एआई, बिकॉज इसकी मेमोरी, इसकी जो कैपेसिटी है, रिपीटेटिव कैपेसिटी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड अगर आपने इससे एक एक हफ्ते में 5 से 6 7 घंटे भी बचा लिए, आप पूरे साल में लिटरली यू कैन सेव 3 आवर्स, 300 आवर्स, 250 प्लस आवर्स और समथिंग लाइक। आप उतने घंटे में तो यू कुड हैव एक्चुअली लर्नड वन मोर स्किल to upgrade yourself, right? So yeah, and always combine your own expertise with the AI's expertise. That is the best thing we can do. There is no point going or talking against AI, because ultimately AI भी तो हम ही drive कर रहे हैं ना। We are the one who are asking are giving prompt to it, right? तो हमें पता होना चाहिए to what extent we have to use it. Next is your data analysis. This skill is very very valued nowadays in corporates, and any of the corporates you go, because and trust me, जरूरी नहीं है कि आपके प्रोफेशन से लिंक हो, नो नॉट एट ऑल। अगर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस या नॉट ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट टेक आउट 15 मिनट्स अ डे। आप 15 मिनट भी एक दिन में नहीं निकाल सकते हो, आप पूरे एक हफ्ते में 1 घंटा निकाल लो, ठीक है। 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे हो, आधे घंटे निकाल लो, वीकेंड्स निकाल लो, करेक्ट। आप कोई एक स्किल पकड़ो इसमें से, ये जितनी 6 5 लिखी हैं, करेक्ट। आप उनको वीकेंड्स पे जस्ट लर्न इट, मे बी फ्रॉम यूट्यूब। नाउ तो इतना ओवरलोडेड है कंटेंट ओवर यूट्यूब एंड एवरीथिंग, यू कैन जस्ट लर्न वन स्किल एंड यू आर वेरी गुड टू गो, ठीक है। दिस इज बिजनेस इंटेलिजेंस, जहाँ पे हम रॉ डेटा को रॉ बेसिकली बीआई में क्या होता है कि हम रॉ डेटा हमारे सामने होता है एंड वी हैव टू टेक आउट द कंक्लूजन्स फ्रॉम इट। हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल वर्जन ऑफ इट, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि फॉर से किसी कॉर्पोरेट में 1000 एम्प्लॉयज हैं एंड आई हैव अ एम्प्लॉय आईडी, आई हैव एम्प्लॉय नेम, आई हैव एड्रेस एंड एवरीथिंग, बट वो डेटा मेरे किसी काम का नहीं है until and unless आई एम नॉट एबल टू ड्राइव फ्रॉम दैट डेटा कि कौन सा एम्प्लॉय हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना हेल्प कर रहा है, या कितनी इफिशियंसी है, या उस एम्प्लॉय की उसकी कितनी यूटिलाइजेशन है कंपनी में, और अगर यूटिलाइजेशन होने के बाद हाउ मच वी आर एबल टू टुगेदर ग्रो इन अ कंपनी, करेक्ट। सो वी हैव टू ड्राइव समथिंग आउट ऑफ इट। आप ये चीज सीख सकते हो, यू कैन लर्न एडवांस्ड एक्सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। एसक्यूएल आप सीख सकते हो, बेसिक पाइथन, ये थोड़ा टेक्निकल है, बहुत बहुत थोड़ा सा। इफ यू फील दिस इज नॉट द राइट थिंग टू लर्न फॉर यू, यू कैन स्किप इट एट ऑल, लाइक एट ऑल यू कैन स्किप इट कम्प्लीटली, ठीक है। बट आप डेटा एनालिसिस जरूर जरूर से सीखो, मतलब पीपल विल एक्चुअली कम एंड आस्क यू इन द कॉर्पोरेट्स कि भाई ये बता दो ये कैसे किया है। सो hands up to this, and this has to be learned. Data analysis is very important. Next is problem solving. When I say problem solving, uh, many people in corporates that I have seen, they are very good in telling the issues. बहुत अच्छी बात है, you should acknowledge। बहुत लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, उनको इश्यूज ही नहीं समझ आते हैं, करेक्ट। सो इट्स गुड टू नो द प्रॉब्लम, बट अगर आप उसका सोल्यूशन भी दे पाओ ना, नो बडी कैन बीट यू। नो बडी मीन्स नो बडी। एंड आप डरो मत अपने ऑप्शंस देने से। यू माइट बी एन ऑप्शन कि आपका ऑप्शन गलत हो, नो वरीज, क्या दिक्कत है, विल कम अप इन अनदर सॉल्यूशन, नो वरीज एट ऑल, राइट।
तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इश्यूज कहाँ पे हैं, उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आप अपने मैनेजर्स के पास ना, मैंने देखा है और खुद भी एक्सपीरियंस किया ओवर टाइम, that managers just don't want the right solutions from their juniors. No, not at all. But what managers want is your effort, you coming up to the managers and telling, Ki, I feel XYZ is the name of the person, and I feel this should be this way. What about you? Like, how do you feel on this topic? And trust me, भाई वो उसी में खुश हो जाएगा. He is seeing you put in extra efforts, and the things will be sorted then and there. ठीक है. And don't worry कि आपके options गलत होंगे, एक बार होंगे, दो बार होंगे, 10 बार होंगे, बट योर एफर्ट मैटर्स गाइस, ट्रस्ट मी, योर एफर्ट मैटर्स. ठीक है. आप ये स्किल जरूर डेवलप करो, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करो, बट अगर आप ये भी कर रहे हो ना, आप सोल्यूशंस लेके जा रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने टीम मेंबर्स को वर्क कैसे इजी कर दूं, आप कुछ भी एक्सकेलेट होने वाला है आपके ग्रुप में या कंपनी में, आप उससे पहले ही बता दो कि यार देखो ये एक सोल्यूशन हो सकता है, what say we can deal on the same. ठीक है. So that is very very important of problem solving skill in corporates. And if you have this tendency, people will start observing you, and genuinely over time you will be rewarded for this, and आपकी salary increase होगी, I can vouch for it. The next and the most personal skill is personal branding. This is not something very much to do in corporates. This is something to do very much in all these spheres, not just corporates, maybe private, maybe government and all the sectors which we have. ये सारे ही सेक्टर्स में इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अब मैं जब मैं पर्सनल ब्रांडिंग कहती हूँ, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ इस चीज का. वंस आई थिंक इस बात को काफी टाइम हो गया है, इट वाज अराउंड 2-3 years back. I met a faculty, and I don't know उनको मैं याद थी या नहीं थी, but I remembered him very nicely. Okay, so I went up to him and I said, "Sir, Soumya this side," and he knew my name, but he actually complimented me. He, you don't leave an opportunity to come and read. Like that was something very very I was very happy about listening to it. And तो आपको ये चीज करनी होती है, राइट. यू शुड नो, यू शुड टॉक टू पीपल. एंड ऐसा नहीं है कि ब्रांडिंग करनी है दैट्स व्हाई यू आर टॉकिंग. यू शुड एक्सप्लोर, मतलब यू शुड टॉक टू पीपल, यू शुड एक्सप्लोर. अब आप किसी से बात करोगे तो आपको उनसे 4 चीजें सीखने को ही मिलेंगी. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट. योर वर्क मैटर्स, बट इफ नोबडी नोज अबाउट इट, आप करते बहुत काम हो, यू लॉग इन द टाइम, यू लॉग आउट ऑन द, यू लॉग आउट लेट, यू लॉग इन ऑन द टाइम. तो बट हाउ इज इट बिकम नोटिसेबल. नोटिसेबल होना भी इक्विवेलेंट जरूरी है. देन डूइंग योर वर्क, वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप उसको वैल्यू तो करो, आप खुद भी वैल्यू करो, और ट्राई कि अदर्स भी उस चीज की आपकी वैल्यू करें. करेक्ट. सो आप एक काम करो उस चीज के लिए, ट्राई टू बिल्ड योर प्रेजेंस ऑन लिंक्डइन, create your ID, send requests to as many people you know, and even if you don't know, send the request to the people जो आपको लगता है आपके अराना के हैं. That's very very important. ठीक है. And share your work on YouTube. अगर आपको YouTube पे बोलना अच्छा लगता है तो share your work over that, right? And networking भी आप बनाइए for the industry events. That is very very important. राइट यूजफुल कंटेंट पब्लिकली. अगर आप ट्विटर पे हो तो आप ट्वीट करो गुड कंटेंट, नॉट समथिंग वेरी बैड, राइट. सो द लास्ट एंड द बोनस टिप दैट आई वांट टू से इज, डोंट ट्राई टू लर्न all the skills at once. Just pick even one. अगर आप दो करते हो तो that's very nice. Even if you're even to pick even one, that will for sure in the coming years will lead you very very high in the industry. ठीक है. आप एक सीखो, दो सीखो, 5 सीख लो तो nothing better than that. But try to learn at least one or two, and you are very very good to go. ठीक है. And thank you so much guys for watching this video. I'll surely come up with another next. Thank you.